ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ BSOC 111 ମଡ୍ୟୁଲର ଏମାଇଲ୍ ଡର୍ଖାଇମ୍‌ଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଚାପ୍ଟର ଆଜି ପଢ଼ିବା। ଏମାଇଲ୍ ଡର୍ଖାଇମ୍‌କୁ ଆମେ ସ୍ନେହରେ ଦ ଗଡଫାଦର ଅଫ୍ ସୋସିଓଲୋଜି ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାର କାରଣ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ସେକେଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡିଂ ଫାଦର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ରାଇଟିଂର ଏକ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ସୋସିଓଲୋଜିରେ ଏବଂ ସୋସିଓଲୋଜିର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଅଛି। ଆମେ ଡର୍ଖାଇମ୍ ଆଜ୍ ଏ ଥିଙ୍କର ତାଙ୍କର ବ୍ରିଫ୍ ବାୟୋଗ୍ରାଫି ପ୍ରଥମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ତାପରେ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଡର୍ଖାଇମ୍‌ଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଯେପରିକି ସୋସିଆଲ ରିଆଲିଜମ୍, ପଜିଟିଭିଜମ୍, ଫଙ୍କସନାଲିଜମ୍ ଏସବୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଡର୍ଖାଇମ୍‌ଙ୍କର କିଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଇଡିଆସ୍ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଲେଖାରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ମଡର୍ଣ୍ଣ ସୋସିଓଲୋଜିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି, ଆମେ ତାକୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ତା ମଧ୍ୟରେ ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ଡିଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ଲେବର ଏହି ଦୁଇଟି ଆଜି ଆମେ କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ବାକି ସୁଇସାଇଡ୍, କଲେକ୍ଟିଭ୍ କନସାଇନ୍ସ ଏବଂ ରିଲିଜିଅନ୍ ଉପରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଆଜି। ତାପରେ ଆମେ ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆଜି ଥିଓରି ଆଜି ଆମେ କଭର କରିବା। ଡର୍ଖାଇମ୍‌ଙ୍କର ବ୍ରିଫ୍ ବାୟୋଗ୍ରାଫି କହିବାକୁ ଗଲେ 1858ରେ ଡର୍ଖାଇମ୍‌ଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଏକ ଜୁଇସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି, ଫ୍ରାନ୍ସର ଏକ ଜୁଇସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ପାଦ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଥିଲେ। ଜୁଇସ୍‌ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିଷ୍ଟଲି କ୍ଲାସ୍ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ତା ମଧ୍ୟରୁ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଜୁଇସ୍ ସମାଜରେ ପାଦ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରାବିସ୍ ନାମରେ ଉଦ୍ବୋଧନ କରାଯାଉଥିଲା। ତ ସିଏ ତାଙ୍କ ପିତା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜୁଇସ୍ ରାବି ଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ଆଶା କରିଥିଲେ କି ଡର୍ଖାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହୋଇକି ଏକ ରାବିସ୍ ହେବେ। ମାତ୍ର ବିଧାତାଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। ଡର୍ଖାଇମ୍ ଆଗକୁ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଏକ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଡର୍ଖାଇମ୍‌ଙ୍କର ଛୋଟବେଳୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍‌ର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଦୁଇଟି ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ ସୋସିଓଲୋଜିର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍‌ରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ସମାଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା। 3 ଇଷ୍ଟେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଆଗରୁ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା, ପ୍ରିଷ୍ଟଲି କ୍ଲାସ୍, ନାଇଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍, ତାକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସରେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଡେମୋକ୍ରାସି ଆସିଥିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କ ହାତକୁ ପାୱାର ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ରିପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ରିପବ୍ଲିକ୍, ଥାର୍ଡ ରିପବ୍ଲିକ୍ ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଫିଫ୍ଥ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଚାଲିଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା ରାଜତନ୍ତ୍ରରୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯାଏ, ଏହା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ସୋସାଇଟିକୁ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସର ମୋରାଲିଟି ଉଭୟକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଡର୍ଖାଇମ୍ ନିଜର ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ପଜିଟିଭ୍ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ସହିତ ଏନଭିସେଜ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍‌ର ଆରମ୍ଭ ବ୍ରିଟେନରେ 1750sରେ ହୋଇଥିଲା ବା ମିଡ୍ 18th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ରିଟେନରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୟୁରୋପ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ୟୁରୋପ ବାହାରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଜାପାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶକୁ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଫଳରେ ମେସିନ୍ ବେସ୍ଡ, ମାସ୍ ବେସ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ କୃଷି ଛାଡ଼ି କଳକାରଖାନା ମୁଖୀ ହୋଇଥିଲେ। ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଥିଓରିରେ ଆମେ ଅଲରେଡି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛେ। ଡର୍ଖାଇମ୍ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ମାର୍କ୍ସ ୱାର୍କର୍ସ ବା ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ପ୍ରୋଲେଟେରିଏଟ୍‌ମାନଙ୍କ ଶୋଷଣ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିଥିଲେ। ଡର୍ଖାଇମ୍ ନିଜ ଥିଓରିରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଯୋଗୁଁ ସମାଜରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯାହାକୁ ସେ ଡିଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ଲେବରରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସମାଜରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସଲିଡାରିଟିରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି। ଡର୍ଖାଇମ୍ ନିଜର PhD ବା ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଶ୍ରମ ବିଭାଜନ ଉପରେ ନିବନ୍ଧ ଲେଖି ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଶ୍ରମ ବିଭାଜନକୁ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ଶ୍ରମ ବିଭାଜନ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଏକ ପୁସ୍ତକ ଡିଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ଲେବର ଇନ୍ ସୋସାଇଟି 1893 ମସିହାରେ ବହି
ଛାପିଥିଲେ। ତାପରେ ଡର୍ଖାଇମ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ବୋର୍ଡକ୍ସ ରେ ନିଜର ଆକାଡେମିକ୍ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଠାରେ ମୁଁ ଏକ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଯଦିଓ ଡର୍ଖାଇମ୍ଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିଲା, ମାତ୍ର କୌଣସି ଏକ ଆକାଡେମିକ୍ ଫିଲ୍ଡର ଅର୍ଥ ଏଠାରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା କଲେଜରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ବୋର୍ଡକ୍ସରେ ଡର୍ଖାଇମ୍ ଏକ ଆକାଡେମିକ୍ ପୋଜିସନରେ ରହିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ର କେବଳ କିଛି କ୍ଲାସିକାଲ ଥିଙ୍କର ଆର୍ମ ଚେୟାର ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ରାଇଟିଂସ୍ ବା ଲେଖା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ହୋଇକି ଥିଲା। ମାତ୍ର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୋସିଓଲୋଜିର ଏକ ପୋଜିସନ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହୋଇଥିଲା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ବୋର୍ଡକ୍ସରେ, ଯାହାର କି ପ୍ରଫେସର ଭାବରେ ଡର୍ଖାଇମ୍ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଏଜୁକେସନ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଓଲୋଜିର ପ୍ରଫେସର ଭାବରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ବୋର୍ଡକ୍ସରେ କାମ କରିଥିଲେ। ଏହିଠାରେ 1896ରେ ଡର୍ଖାଇମ୍ ଆନେ ସୋସିଓଲୋଜି ନାମକ ଏକ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଜର୍ନାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ଜର୍ନାଲ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଚକତର ତଥା ଗବେଷଣାତ୍ମକ ଲେଖା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାପି ଆସୁଛି ଏବଂ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଏକ ଆକାଡେମିକ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଭାବରେ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରୁଛି। ଡର୍ଖାଇମ୍ଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍କୁ ସେ ୱିଟନେସ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ତରଫରୁ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ବୀରଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ସମୟରେ ଏକ ଘଟଣା ଡର୍ଖାଇମ୍ଙ୍କର ଆକାଡେମିକ୍ସ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ଡ୍ରେଫ୍ୟୁଜ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ନାମରେ ଏହି ଘଟଣାଟି ଖ୍ୟାତ ବା କୁଖ୍ୟାତ କହିପାରିବା। ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ଡ୍ରେଫ୍ୟୁଜ ଜଣେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମିଲିଟାରୀ ଅଫିସର ଥିଲେ, ଯାହାକୁ କି ଏକ ମାଲିସିୟସ୍ କୋର୍ଟ ପ୍ରୋସିଡିଂ ବା ଏକ ମିଥ୍ୟା ମକଦ୍ଦମା ମାଧ୍ୟମରେ କଚେରୀ ମକଦ୍ଦମା ମାଧ୍ୟମରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। କେଉଁ ଦୋଷର? ତାଙ୍କୁ ଜର୍ମାନର ଗୁପ୍ତଚର ହେବାର ଦୋଷରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବା ଏହି ଘଟଣା ସମୟରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ସୋସାଇଟିରେ ଜିଉସ୍ ମାନେ ବା ଇହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଘୃଣା ଭାବ ବଢ଼ିଥିଲା, ଯାହାକୁ କି ଡର୍ଖାଇମ୍ ନିଜର ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ କେସ୍ଟି ମାଲିସିୟସ୍ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣ ହେବା ପରେ ଡର୍ଖାଇମ୍ଙ୍କ ଲେଖା ଗଭୀର ଭାବରେ ସେ ସମୟରେ ଆଦୃତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଜିଉସ୍ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ରହିଥିବା ଅବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ସେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍, ମୋରାଲିଟି ଏସବୁ ଉପରେ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଟର ଲାଇଫର ରାଇଟିଂସ୍ ଏସବୁ ଏହି ଘଟଣା ଠାରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଶେଷରେ 1917 ମସିହାରେ ଡର୍ଖାଇମ୍ ହୃଦଘାତରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ଡର୍ଖାଇମ୍ଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡର୍ଖାଇମ୍ଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଡର୍ଖାଇମ୍ଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରଥମ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଉଛି, ତାକୁ ଆମେ ସୋସିଆଲ ରିଆଲିଜିମ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା ବା ସମାଜର ବାସ୍ତବିକତା। ଏହା ଏକ ଆଇଡିଓଲୋଜି ବା ଚିନ୍ତାଧାରା ଯାହାକି ସମାଜର ବାସ୍ତବିକତା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିଥାଏ। ଏଠାରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ସମାଜକୁ ବେଶୀ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଡର୍ଖାଇମ୍ଙ୍କ ମତରେ ସୋସାଇଟି ହେଉଛି ସୁଇ ଜେନରିସ୍। ସୁଇ ଜେନରିସ୍ର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାହା ନିଜକୁ ନିଜେ ତିଆରି କରିପାରେ। ତ ତାଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମିଶିକି ସମାଜକୁ ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମାଜ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏକ ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ତ ବ୍ୟକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ସମାଜ ଆସିବା ଦରକାର। ତ ଏହା ହିଁ ଡର୍ଖାଇମ୍ଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାଡେମିକ୍ ରାଇଟିଂସକୁ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛି, ଯାହା କହୁଛି କି ଦ
सोसाइटी ऑलवेज गेट्स प्रेसिडेंस ओवर इंडिविजुअल्स डरखाइम करो राइटिंग रे रिफ्लेक्ट होतबा कलेक्टिव कॉन्साइंस कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन कलेक्टिविटी ए सबु एही गोटिए लाइन रे आमे ए सबु को समराइज करि परिबा जहा कहूची कि सोसाइटी सुई जनरिस एंड इट कम्स बिफोर इंडिविजुअल्स डरखाइम निज पूर्वरु सोसाइटी उपरे दिया जाइथिबा निज प्रेडेसेसर्स बा पूर्वज मानकर समस्त प्रकार थियोरी को भूल प्रमाण करथिले एवं जदियो से सेठारु किछि इन्फ्लुएंस हेतिले किंतु से समस्त थियोरी को रिजेक्ट करथिले एवं तापरे से निजरो थियोरी देथिले एहा मध्यमरे प्रथम थियोरी होची यूटिलिटेरियन थियोरी सोशियोलॉजी ठारु बेसी इकोनॉमिक्स रे प्रसिद्ध जहा कि सोसाइटी को सब बेले एक इकोनॉमिक एक्सचेंज रो माध्यम रे देखे एवं लोकमानंकर मंगल तथा लोकमानंकर खुशी रे समाज रो खुशी रहिछि बोली विश्वास करिथाय तो एही थियोरी सब बेले पीपल्स एही थियोरी सब बेले इंडिविजुअल माननकु समाज ठारु अधिक गुरुत्व प्रदान करथाय एवं इंडिविजुअल मानक सैटिस्फैक्शन उपरे समाज रो खुशी निर्भर करूछि बोली थियोरी देथाय जेमति कि जॉन बेंथम जे.एस. मिल्स आडम स्मिथ एमाने किछि यूटिलिटेरियन थिंकर्स डरखाइम एमान को विरोध करथिले डरखाइम को मतरे सोसाइटी ऑलवेज प्रेसिडेंस बिफोर इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आर इनसेपरेबल जदियो समाज एवं मनुष्य परस्पर सहित गभीर भाव जड़ित एवं सेमान को अलग करा जाय परिबो नाही किंतु समाज ठारू मनुष्यकर तयारी एवं समाज मनुष्य ठारू पूर्वरु आसुची एवं सब किछि को इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू रु देखा जाय परिबो नाही एहा थिला डरखाइम थियोरी फॉर एग्जांपल आमे उदाहरण नै परिबा भारतीय हिंदू समाज रे बीफ एक प्रोटीन युक्त खाद्य होइथिले मध्य गोमांस एवं गाई चारियाडे अवेलेबल एक्सक्यूज मी गाई बहुल भाव में भारतीय समाज रे अवेलेबल थिले मध्य लोक माने गोमांस खाई न थांती कारण हिंदू धर्म यहाँ को वर्जन करता है जदि आम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू रू देखिबा तो लोक माने एक सस्ता प्रोटीन रो उच्च भाव में गोमांस ग्रहण कर परिबे जाकि ताको बहुत सस्ता रे मिली परिबो किंतु लोक माने एहा प्रेफर करंती नाही कारण कोनोसी प्रकार समाज रे प्रचलित होइथिबा धर्म लोक मान को बाधा देता है सेतिमे हमें कहि परिबानी कि ह्यूमन और सोसाइटी इज ऑलवेज यूटिलिटेरियन एवं समाज रो गभीर प्रभाव मनुष्य ऊपर रहता है तापर द्वितीय रे डरखाइम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी विषय रे वर्णना करछंती एवं तापर तांको रिजेक्ट करछंती सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी रो मेन थियोरिस्ट हले जे रूसो थॉमस हॉब्स एवं जॉन लॉक डरखाइम जदियो रूसोंकर राइटिंग्स रे थिबा मोरालिटी जहा कि एक सोशल मोरालिटी जहा कि समाज को एकाठी रखिबारे सहायता करता है ताकू जदियो डरखाइम निज राइटिंग्स रे सपोर्ट करछंती मात्र डरखाइम को द्वारा प्रचलित इंडिविजुअलिस्टिक थियोरी जहा कि मोरालिटी को मानव चेतना एवं मानवर चरित्र एक पार्ट हिसाब रे डिस्क्राइब करा जायछि ताकू विरोध करछंती डरखाइम को मतरे समाज रे प्रचलित थिबा मोरालिटी बा नीति नियम जहाँ भी अच्छी जहाँ मनुष्य को ठीक बाटर चलवा बाध्य करुच्ची ता मनुष्य ठारू आसी न था बरं ता समाज ठारू आसी था एवं मनुष्य ताकू बाध्य होई फॉलो करि था कारण समाज मनुष्य ठारू प्रथमे आसी था एवं समाज मनुष्य ऊपर एक कन्स्ट्रेन बा एक चाप एक्सटर्नल बा बाह्य दिगरु पकाई था सेति डरखाइम को मतरे कि मोरालिटी रो सोर्स the source of morality is always society not individuals एवं तापरे डरखाइम हर्बर्ट स्पेंसर जे कि अन्य एक क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट तांकर थियोरी को अपोज करिसंती डरखाइम को मतरे जदियो डरखाइम स्पेंसर कठारु फंक्शनलिज्म शिखिसंती बा फंक्शनलिज्म रे से स्पेंसर कर थियोरी को बहुल भाव रे व्यवहार करिसंती किंतु
स्पेन्सर कर थ्योरी रे सॉलिडारिटी रो उच्च सब बेले इंडिविजुअल बा मनुष्य पाई ही समाज रे एकतार संभव घटी थाए एकता आसी पारि थाए किंतु डरखाइन को मतरे या नुह वास्तविकता एकता समाज रो ही आसी थाए एवं समाज निजकू एकाठी रखिबा पाई बा सोशल इंटीग्रेशन पाई लोक मानक मध्य रे एकता प्रचलित करथाए डरखाइन को भाषा रे social integration is not the result of individual action but a shared sense of solidarity that keeps society together तो समाज को एकाठी रखिबा पई समाजर आवश्यकता पूर्ण निमंते सोशल सॉलिडारिटी बा एकत्वर सृष्टि होइछि एहा थिला सोशल रियलिज्म डरखाइन कर सोशल रियलिज्म ऊपर मतामत एवं तांको द्वारा तांको प्रेडेसेसर्स मानकर थ्योरी रो रिजेक्शन तापर हमें आसीबा डरखाइन कर नेक्स्ट थ्योरी जोटा कि कहउछ पॉजिटिविज्म थ्योरी रे डरखाइन प्रथमतः जने विशिष्ट फ्रेंच चिंतक मॉन्टेस्क्यू ताकठारु अनुप्राणित होइथिले मॉन्टेस्क्यू को मतरे साइंस ऑफ सोसाइटी शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स नॉट ऑन स्पेकुलेशन तो सेहिठारु ही डरखाइन निजर समाज शास्त्र परिकल्पना करथिले जहा कि फैक्ट बेसिस रे तयारी हेबो एवं एठारे से सेंट सिमन एवं ऑगस्ट कॉम्ट जहा को कि हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी बोली कहिथाउ तांकर राइटिंग द्वारा प्रभावित होइथिले एहा होची एही समय जे समय रे कि सोशियोलॉजी निजर फॉर्मेटिव स्टेज रे थिला बा सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट भाव रे आरंभ हेउथिला एही समय रे साइंस रो टैग पाइबा पई विभिन्न समाज शास्त्र माने विभिन्न विषय वस्तु विभिन्न डिसिप्लिन्स निज भितर कम्पीट करुथिले एवं साइंस रो टैग को एक सम्मान सहित देखा जाउथला सेही समय रे सोशियोलॉजी रो फाउंडिंग फादर हिसाब रे ऑगस्ट कॉम्ट मध्य चेष्टा करथिले कि सोशियोलॉजी को मध्य एक साइंस भाव रे कंसीडर करा जाउ एवं साइंस भाव रे कंसीडर करिवा को हेले सोशियोलॉजी साइंटिफिक मेथड फॉलो करिया को पड़िबो एवं फैक्ट सहित डील करिया को पड़िबो डरखाइन एही दिगरे आउ किछि स्टेप आगु नै थिले डरखाइन कर जदि हमें थ्योरी देखिबा मुख्यतः तांको थ्योरी ऑफ सुसाइड रे से साइंटिफिक मेथड विभिन्न प्रकार साइंटिफिक मेथड व्यवहार करछंती एहा मध्यरु मुख्य मेथड किछि स्टैटिस्टिक्स मेथड कंपैरेटिव मेथड आदि रहिछि एवं जते पर्यंत संभव से सेथरे फैक्ट देबा पई चेष्टा करछंती एवं फैक्ट को निज भाषा रे इंटरप्रेट करछंती तो डरखाइन मध्य एही चिंताधारा रे विश्वास रखुथिले कि सोशियोलॉजी एक साइंस भाव रे कंसीडर करा जाऊ एवं एही दिगरे प्रचलित आइडियोलॉजी पॉजिटिविज्म को मध्य डरखाइन समर्थन करथिले एवं तांको राइटिंग रे पॉजिटिविज्म रो इन्फ्लुएंस बारी होई पारे एवं शेषरे मार्सेल माउस नामक अन्य एक स्कॉलर जे कि कंपैरेटिव मेथड को प्रथम थर पई सोशल साइंस रे व्यवहार करथिले एहा मध्य डरखाइन को इन्फ्लुएंस करथिला डरखाइन ताको थ्योरी रे कंपैरेटिव मेथड रो बहुल व्यवहार करछंती हम जदि ताको डिवीजन ऑफ लेबर थ्योरी देखिबा सेठारे से मेकानिकल सॉलिडारिटी एवं ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी मध्य रे कंपैरेटिव मेथड व्यवहार करछंती आमे जदि सुसाइड देखिबा से रिच पुअर तापरे मेन वुमेन तापरे प्रोटेस्टेंट्स आउ कैथोलिक्स एपरि क्रिश्चियन धर्म रे थिबा दुईटी सेक्ट तो एपरि विभिन्न प्रकार संप्रदाय विभिन्न प्रकार कम्युनिटी मातक मध्य रे सुसाइड को नेकी एक कंपैरेटिव मेथड को फॉलो करी कंपैरिजन देइछंती तो डरखाइन को थ्योरी रे कंपैरेटिव मेथड रो बहुल भाव रे व्यवहार होइछि एवं एही कंपैरेटिव मेथड को से मार्सेल माउस को द्वारा अनुप्राणित होई व्यवहार करथिले एवं तापरे डरखाइन को ऊपर फंक्शनलिज्म रो बहुल प्रभाव रही फंक्शनलिज्म को आम ओडिया रे प्रकारज्यवाद मध्य कहि परिबा एही फंक्शनलिज्म रे सर्वाधिक प्रभाव डरखाइन निजे विरोध करुथबा हर्बर्ट स्पेंसर ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट ब्रिटिश क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट हर्बर्ट स्पेंसर कर ऑर्गेनिक एनालॉजी द्वारा बहुल भाव रे अनुप्राणित होइथिले ऑर्गेनिक एनालॉजी थ्योरी रे हर्बर्ट स्पेंसर
मनुष्य सहित मनुष्य बा एक ऑर्गेनिज्म बा एक जीव रो शारीरिक विकास सहित समाजर विकास को कंपेयर करथिले। एही थ्योरी द्वारा अनुप्राणित होई डर्कहाइम मेकानिकल सॉलिडारिटी एवं ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी ऊपर फोकस करथिले। हर्बर्ट स्पेंसर देथिबा इंडस्ट्रियल सोसाइटी एवं मिलिटेंट सोसाइटी रो डिफरेंस को मध्य डर्कहाइम निजर थ्योरी ऑफ सॉलिडारिटी रे व्यवहार करथिले। तो तापरे फंक्शनलिज्म रे डर्कहाइम सोशल इंटीग्रेशन ऊपर बेसी फोकस करिवा आरंभ करथिले। समाजर एकता ऊपर एवं एकता किपरि एक प्रकारज भाव रे समाज रे कार्य करूची ता ऊपर डर्कहाइम गभीर भाव रे आलोकपात करथिले एवं तांको थ्योरी पई से एही फंक्शनलिज्म थारो इन्फ्लुएंस होइथिले। तापर जदि हम देखिबा डर्कहाइम कर नेक्स्ट थ्योरी डिविजन ऑफ लेबर एहा मध्य फंक्शनलिज्म द्वारा अनुप्राणित मात्र एठारे से इकोनॉमिक सेंस ऑफ डिविजन ऑफ लेबर को अपोज करथिले। तांको मतरे डिविजन ऑफ लेबर इज वेरी मच सोशल और एहार ओरिजिन समाज रे हेउथिबा विवर्तन समाज रे हेउथिबा परिवर्तन द्वारा अनुप्राणित। जेपरि मु मूलरू कहिथिली इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एवं फ्रेंच रिवोल्यूशन द्वारा डर्कहाइम अनुप्राणित होइथिले। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पर समाज रे जे परिवर्तन देखा जाइतिला सही परिवर्तन को डर्कहाइम निजर थ्योरी ऑफ डिविजन ऑफ लेबर माध्यम रे प्रकाश करथिले। एवं एही थ्योरी को जेतबेला हम डिटेल रे पढिबा सेठारे हम प्रकारजवाद आ फंक्शनलिज्म रो एसेंस प्रत्येक स्टेप रे पाई परिबा। डर्कहाइम एही थ्योरी रे देखिया को चाहिछंती कि मेकानिकल सॉलिडारिटी हो किंबा ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी हो दुईटी जगह रे हमें डिविजन ऑफ दुईटी जगह रे हमें सोसाइटी पई परफॉर्म हेउथिबा फंक्शन बा समाज पई करा जाउथिबा प्रकारज ऊपर केपरि केपरि एहा समाज ऊपर एक फंक्शन प्ले करूची बा समाज रे एक प्रकारज को पूरा करूची। सेति में हमें कहि परिबा कि फंक्शनलिज्म रो एक ग्रेट इन्फ्लुएंस डर्कहाइम को राइटिंग्स रे रिफ्लेक्ट होची। तापर हमें आसीबा डर्कहाइम को किछि सेंट्रल आइडियाज को। प्रथम आइडिया जोटा कि हमें या पर डिस्कशन करिबा ता होची सोशल फैक्ट। डर्कहाइम निजर थ्योरी रो एसेंस बा बेसिस सोशल फैक्ट को रखिथिले एवं सोशल फैक्ट हेउची मो भाषा रे एक चाबी जहा कि डर्कहाइम कर समस्त राइटिंग रो खोलिबा पय यथेष्ट। सोशल फैक्ट इज द सेंट्रल आइडिया एंड द एसेंस ऑफ दुर्खिमियन सोशियोलॉजी। एवं डर्कहाइम निजर समस्त थ्योरी को सोशल फैक्ट माध्यम रे डिस्क्राइब करथिले। डिविजन ऑफ लेबर हमें ऑलरेडी डिस्कशन करछे। 1893 रे ताको पीएचडी थीसिस को से एक बही भाव रे प्रकाश करथिले जाके डिविजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी नाम रे प्रचलित। एठारे डर्कहाइम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एनलाइटमेंट फेज पर जो मॉडर्निटी आसी समाज रे बा मॉडर्न टाइम आसी मॉडर्न टाइम रे समाज रे जो परिवर्तन आसी ता ऊपर फोकस करछंती जोंटा कि समाज को मेकानिकल सॉलिडारिटी रू ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी दिगरे आनिछि। तो एही दुईटी सॉलिडारिटी किपरि समाज को इंटीग्रेट करिबार निज निजर वे रे सहाय्य करूछि ता डर्कहाइम निज थ्योरी ऑफ डिविजन ऑफ लेबर रे डिस्क्राइब करछंती। तापर हम आसीबा डर्कहाइम कर आउ एक थ्योरी जा कि सुसाइड नाम रे प्रचलित। सुसाइड थ्योरी रे निजर पर्सनल असिस्टेंट रो सुसाइड परे डर्कहाइम अनुप्राणित होई सुसाइड ऊपर स्टडी करथिले। सुसाइड थ्योरी रे डर्कहाइम कर मेजर एटा से 1897 रे एक पुस्तक लिखिथिले ले सुसाइड फ्रेंच भाषा रे पुस्तक थिला एवं परे हार इंग्रजी अनुवाद करा जायछि द सुसाइड नाम रे। एही सुसाइड रे डर्कहाइम प्रथम थर पई सुसाइड को एक सोशल फैक्ट भाव रे डिस्क्राइब करथिले। तांको पूर्वरु प्रेडिसेसर्स माने सब बेले सुसाइड को एक साइकोलॉजिकल फैक्ट बा एक मनस्तत्विक कार्य भाव रे निजर रचना निजर लेखारे चिन्हित करिसंती। मात्र डर्कहाइम सेमानक ठारू टिके अलगा एक सोशल एक्सप्लेनेशन ऑफ सुसाइड निज थ्योरी रे देथिले। तांको मतरे साइकोलॉजिकल कॉज बा मनस्तत्विक कारण एक ट्रिगरिंग फैक्टर होई पारे मात्र सुसाइड रो मूल कारण समाज मध्य रे लुचि रहिछि। से दुईटी सोशल करेंट विषय रे डिस्क्राइब करथिले जहा होछि इंटीग्रेशन एवं रेगुलेशन। डर्कहाइम को मतरे
ଏହି ଦୁଇଟି सोशल करेन्ट रो ऊपर तल हेबा सहित ଏହି दुईटी सोशल करेन्ट जेपरि कि इंटीग्रेशन बहुत बढ़ी गले मध्य लोक समाज रे सुसाइड करथांती जहाको हमें अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड कहथाउ इंटीग्रेशन समाज रे बहुत कमी गले लोक सुसाइड करथांती जहाको कि हमें आनोमिक सुसाइड कहथाउ सेमती समाज रे रेगुलेशन बहुत अधिक बढ़ी गले लोक सुसाइड करथांती ताको हमें फाटालिस्टिक सुसाइड कहथाउ एवं समाज रे रेगुलेशन बहुत कमी गले मध्य लोक सुसाइड करथांती जहाको कि हमें इगोइस्टिक सुसाइड कहथाउ तो यह थिला डरखाइम करो थ्योरी ऑफ सुसाइड तापर डरखाइम कलेक्टिव कॉन्साइंस ऊपर डिस्क्राइब करछंती कलेक्टिव कॉन्साइंस कहिया को गले समाज रे एक प्रकार रो चिंताधारा जहा को कि समाज रे एवरेज भाव रे साधारण भाव रे समाज रो प्राय समस्त लोक जहा जो थरे विश्वास रखि थांती यह होची समाज रो कलेक्टिव कॉन्साइंस डरखाइम करो समस्त थ्योरी डिवीजन ऑफ लेबर होई पारे सुसाइड होई पारे सोशल फैक्ट होई पारे रिलीजन होई पारे हमें सब थ्योरी रे कलेक्टिव कॉन्साइंस एवं तार व्यवहार देखि परिबा एवं किपरि भाबरे कलेक्टिव कॉन्साइंस तयारी होउची एवं कलेक्टिव कॉन्साइंस जेतबेले इंडिविजुअल एक्शन द्वारा इंज्योर होउची तापर सोसाइटी केमती रिप्रेसिव किंबा रेस्टिट्यूटिव लॉ फॉर्मुलेट करिकि सोसाइटी को पुनी आउथरे निजर इक्विलिब्रियम बा बैलेंस फेज को आणुची ता डरखाइम करो राइटिंग्स रे प्रत्येक प्रकार राइटिंग रे हमें देखि परिबा तो कलेक्टिव कॉन्साइंस मध्ये डरखाइम को द्वारा दिया जाइथिबा एक सेंट्रल आइडिया जहा कि सोशल रियलिज्म को रिफ्लेक्ट करे एवं कलेक्टिविटी किपरि इंडिविजुअलिटी ऊपर सब बेले भारी पड़े ताहा डरखाइम करो एही थ्योरी रे हमें देखि परिबा तापर शेषरे डरखाइम करो थ्योरी ऑफ रिलीजन अछि रिलीजन मध्ये डरखाइम करो एक सेंट्रल आइडिया एठारे डरखाइम आधुनिक रिलीजन आधुनिक धर्म एवं धर्मर विश्वास ऊपर फोकस न करी एक नया प्रकार थ्योरी एक नया आइडिया नै छंती डरखाइम को थ्योरी रे रिलीजन किपरि एक सोशल फैक्ट एवं एहा किपरि कलेक्टिविटी को बढ़ाई थाए एवं एहा किपरि समाज रे निजर फंक्शन पूरा करे थाए ता ऊपर डरखाइम डिस्क्राइब करछंती ता पई से अरुंथा जनजाति ऑस्ट्रेलिया रो अरुंथा जनजाति अबोरिजिनल सेमान को ऊपर फोकस करछंती एवं अरुंथा जनजाति प्रैक्टिस करथबा टोटेमिज्म डरखाइम एक सर्वपुरातन धर्म बा धर्मर आरंभिक उत्स भाव रे निजर राइटिंग रे डिस्क्राइब करछंती सो यह थिला डरखाइम करो किछि सेंट्रल आइडिया वर्तमान आमे आसीबा डरखाइम करो थ्योरी ऑफ सोशल फैक्ट ऊपर जदि हमें डरखाइम करो सोशल फैक्ट देखिबा डरखाइम सोशल फैक्ट को प्रथम डिफाइन करछंती कि इट्स एवरी वे ऑफ एक्टिंग फिक्स्ड और नॉट कैपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑन इंडिविजुअल्स एंड एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट डरखाइम को मतरे इट्स अ वे ऑफ थिंकिंग फीलिंग एंड एक्टिंग दैट आर एक्सपीरियंस्ड बाय इंडिविजुअल्स as external and constraining and they are general throughout the social group. They are internalized in the consciousness of individual. These constraints provide us moral obligation. Thus, social facts or these constraints control us. In this sense, society is something beyond us and something in ourselves. Social facts are such facts that the actor and the social scientists come to know through social phenomena. तो डरखाइम यह कही रखिया को चाहूँगी कि सोशल फैक्ट हेउची एवरी वे ऑफ एक्टिंग किंबा ता सहित से थिंकिंग एवं फीलिंग को मध्य इंक्लूड करछंती मनुष्य ठारू एक्सटर्नल बा एक बाह्य शक्ति भाव रे काम करथाय एवं यह कन्स्ट्रेनिंग रो अर्थ मनुष्य ऊपर एक प्रभाव बा एक चाप पकाई थाय एवं ता सहित देज आर जनरल थ्रू आउट द सोसाइटी
बा एका केवल गोटे मनुष्य नुह जेनेराली बा साधारण भाव में प्रायतः समस्त को समाज यहाँ प्रभावित करें सोशल ग्रुप बा समाज रे सामाजिक गोष्ठी बा सोसाइटी रे रही पाखापाखि प्रत्येक इंडिविजुअल को यह मोरलेस अफेक्ट करें दीज आर इंटरनलाइज्ड इन द कॉन्शियसनेस ऑफ इंडिविजुअल माने तार अर्थ मनुष्यर कॉन्शियसनेस मध्य रे यह इंटरनलाइज होता है मनुष्य निजर कॉन्शियसनेस मध्य रे यह को स्थान देता है सेति में यह एक मोराल ओब्लिगेशन भाव रे मनुष्यर जीवन को कंट्रोल करता है दिस इज समथिंग बियॉन्ड अस एंड समथिंग इन आवर सेल्फ माने जदियो यह बाह्य स्तर रु आसी थाए किंतु कोनोसी ना कोनोसी प्रकार यह आम मध्य रे इंटरनलाइज हो सारी थाए बा यह मनुष्य बाहर भी थाए एवं मनुष्यर भितर भी आसी सारी थाए social facts are such facts that the actors and social scientists come to know through social phenomenon बा विभिन्न सामाजिक प्रक्रिया समाज रे थिबा अनुष्ठान आदि द्वारा लोक माने एहा विषय रे जानिबा को पाई थांती एहा मु जानि परुछि एहा एक बहुत एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी एहा को कंक्रीट वे रे बुझिया को हेले हमु किछि उदाहरण नबा को पड़िबो प्रथम तो हमु लैंग्वेज एज ए सोशल फैक्ट को एक उदाहरण नै कि बुझिया को चाहूछि हम जदि लैंग्वेज को देखिबा आमे जो भाषा कहूचे से भाषा प्रथमतः तो लैंग्वेज इज अ सोशल फैक्ट इट कैन बी स्टडीड साइंटिफिकली इट कैन बी स्टडीड मोर देन ए फिलोसॉफिकल आइडिया कंसिस्ट्स ऑफ सम रूल्स एंड ग्रामर जदि आमे लैंग्वेज को देखिबा लैंग्वेज रे किछि रूल्स अछि किछि ग्रामर अछि जोटा को आमे फॉलो करिया पय बाध्य आमे वर्तमान से रूल तयारी करने जदियो कोनोसी इंडिविजुअल किछि ग्रामर रूल जेमते संस्कृत रे आमे कहि परिबा पाणिनि किछि नियम करथिले व्याकरण ताको पूर्वरु भी संस्कृत थिला एवं ताको पर भी संस्कृत अछि तो इंडिविजुअल भाव रे हमें जदियो कहि परिबा कि किछि किछि हमें कंट्रीब्यूट करिछे तो हमें कहि परिबानी कि से भाषार आरंभ जो गोटे इंडिविजुअल करिछि बोली सेति पय एहा प्रथम तो कहिया गले मनुष्य थारु एक्सटर्नल बा बाहरु आसीछि द्वितीयतः ए जो रूल ग्रामर रहिला एटा मनुष्य ऊपर समाज द्वारा मनुष्य ऊपर इंपोज करा जाए जतबेला आमे गोटे भाषा कहूचे तार रूल्स तार ग्रामर को सम्मान जणै ताको व्यवहार करी आमे गोटे भाषा को कहूचे सेति पय एहा कंस्ट्रेन बा एक कंस्ट्रेन क्रिएट करे बा एक चाप प्रयोग करे एही भाषा मध्य रे अगर व्याकरण को मानिबा पय लैंग्वेज इज नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम अस रादर देन वी ओनली यूज इट डिपेंडिंग अपॉन आवर कॉन्टेक्स्ट एहार अर्थ भाषा को आमे सृष्टि करिनु मात्र भाषा को आमे केवल व्यवहार करू एवं निज कॉन्टेक्स्ट को लेके व्यवहार करू उठारे मु कहि परिबी कि एक्सटर्नल फीचर ऑफ सोशल फैक्ट हैज बीन रिफ्लेक्टेड हियर आमे जो बाह्य जगत रु आसी बोली कहूचे एहा मनुष्य भितरु आसीनी बाहर आसी आमे एठी सेटा देखि परिबा द्वितीयतः मु एठारे कहितली आपनकु थर्ड पॉइंट रे कि इट इज समथिंग बियॉन्ड अस एंड समथिंग इन आवर सेल्फ ता एठी रिफ्लेक्ट होची जदियो एटा एक्सटर्नल इट इज नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम अस किंतु आमे ताको इंटरनलाइज करिचे एवं भाषा हम भितरे रहिची जतबेले भी आमे निजर भाव को प्रकाश करूचे आमे भाषार सहायता नउचे जदियो आमे ताको ओरिजिनेट करिने आमे भाषार आरंभ करिने किंतु भाषा जदियो बाहरु आम पाखु आसीची आमे भाषा को शिखिचे समाजर एक मेंबर हिसाब रे आमे भाषा को शिखिचे किंतु भाषा को आमे निज मध्य रे इंटरनलाइज मध्य करि देइचे तापर तृतीयतः language is very complicated and its use finally changes in language cannot be traced to a person changes occurring in language in social structure brings change in the structure of language तार अर्थ केवल गोटे इंडिविजुअल केस रे हमें कहि परिबानी कि भाषा रे परिवर्तन आड़ी खबर बरं समाजर स्ट्रक्चर रे परिवर्तन घटिले भाषार स्ट्रक्चर रे परिवर्तन घटिबो सेति में हमें कहि परिबा कि लैंग्वेज इज आल्सो इंडिपेंडेंट फ्रॉम इंडिविजुअल्स या छडा अन्य एक पॉइंट भी मु कहि परिबी लैंग्वेज इज आल्सो जनरल थ्रू आउट द सोसाइटी भाषा केवल जदि गोटे इंडिविजुअल बा गोटे व्यक्ति व्यवहार करूथांता तेबे ता भाषा न थांता ता केवल से व्यक्तिर भाव प्रकाशर माध्यम थांता जेतबेले बहुत लोक समाज रे प्राय समस्ते गोटे भाषा को व्यवहार करछंती सेतबेले ही हमें कहि पारुचे कि भाषा
বা ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ জেনারেল ইন द सोसाइटी। एहीपरि आउ एक उदाहरण आम ना धर्म को आम देखा। प्रथमतः धर्म आम उपरे किछि नीति नियम धर्म आम उपरे किछि नीति नियम इम्पोज करुछि। जेपरिक आम हिंदू धर्म रे देखिबा कि केबे मंदिर जिबार अछि बा मनकर पूजा करिवार अछि, दीप बसैबार अछि, मंदिर गले बा शिव मंदिर गले पानी नागी करिवार अछि। ए सब होछि कोन आमे कहि परिबा एगुडा धर्मर विभिन्न चाप जोटा हमको मानिबा को पड़ुछि। जो धार्मिक उत्सव रे मंदिर जिबा पड़ुछि आमे केवल वेजिटेरियन से दिन भेज खाउछे बा जदि मंदिर जाउछे मंदिर रे अबड़ा खाउछे, एटा होछि धर्मर एक चाप। हम इच्छा थिले मध्ये हम से दिन सेही जगह रे नॉन वेज खाइ परिबा नाही। एहा हमको एक कन्स्ट्रेंट बा एक चाप सृष्टि करुछि। तापर एक्सटर्नल देखिबा अगेन धर्मटी होछि हमठो एक्सटर्नल, कारण आमे धर्म को सृष्टि करिने धर्म मध्यरे आमे जन्म ग्रहण करिचे। जेहेतु आम समाज रे गोटे धर्म परिचालित होउछि आमे केवल सही धर्म को फॉलो करूचे, तो सेति में आमे ताको एक्सटर्नल बोली कहिबा। एवं तापर जदि आमे देखिबा धर्म होछि इंडिविजुअल थारु स्वतंत्र, सो इट इज इंडिपेंडेंट, कारण केवल गोटे इंडिविजुअल चाहि देले धर्म रे परिवर्तन होई जिवो नाही। एवं जेनरेशन बाय जेनरेशन इंडिविजुअल बदलुचंती किंतु धर्म सेमती रहिछि। मो घर पाखे थिबा एक मंदिर मु कहूँ परशुरामेश्वर मंदिर पाखापाखि 650 एटी बा 7म सेंचुरी सीई रे सेटा तयारी हेतिला। तो आज पर्यंत केते जेनरेशन पास हेले किंतु से मंदिर रे सेमती पूजा होउछि। हम पूर्व पुरुष भी सेठी पूजा करथिले, आमे भी एबे पूजा करछु, हम परवर्ती पीढ़ी भी सेही मंदिर रे पूजा करथिले। एटा कोन शो करूछि धर्म हेउछि इंडिविजुअल मानक ठारू इंडिपेंडेंट बा स्वतंत्र। तापरे जनरलिटी ताकू मध्य हमें देखि परिबा। धर्म रे जदि हमें देखिबा धर्म केवल गोटे लोक फॉलो करूनी, धर्म समाज रे समस्त प्राय गोटे धर्म को फॉलो करूछंती। आम समाज जेहेतु मल्टी रिलीजियस सोसाइटी आमे आम समाज रे विभिन्न प्रकार धर्म देखि परिबा, कि जदि गोटे धार्मिक संप्रदाय भितर देखिबा देन इट इज जनरल थ्रू आउट दैट कम्युनिटी और दैट सोशल ग्रुप। से सोशल ग्रुप रे प्रायतः समस्ते सेही धर्म को फॉलो करिथांती। तो सेति में दैट इज जनरल थ्रू आउट दैट सोशल ग्रुप और सोसाइटी। तो भाबुची एहा फल रे आपन को सोशल फैक्ट बुझिबारे सुविधा होतिबो। एबे हमें नेक्स्ट पॉइंट को आसीबा टाइप्स ऑफ सोशल फैक्ट। एक्सक्यूज मी। दरखाई मुख्यतः दुई प्रकार सोशल फैक्ट को डिस्क्राइब करछंती। In complex way, their interactions will obey laws and their own, all their own. दरखाई में ठारे कहिया को चाहछंती कि नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट रे वर्तमान ऑब्जर्वेबल एस्पेक्ट कम रही थाए। एवं एही नॉन मटेरियल सोशल फैक्टर एग्जांपल रे से ब्यूरोक्रेसी ऊपर फोकस करछंती। ब्यूरोक्रेटिक नॉर्म को हमें देखि परिबनी, जेमिति हम पॉपुलेशन को देखि परथिले सेमति ब्यूरोक्रेटिक नॉर्म को हमें केबे देखि परिबनी, ऑब्जर्व करि परिबनी। मात्र यह सोसाइटी रे रही थाए एवं सोसाइटी को अफेक्ट करथाय। दरखाइम को भाषा रे दुरखाइम हम जदि इंग्लिश रे कहिबा Durkheim understood non-material social facts through materiality. Bureaucracy, for example, is a mixture of morphological component and non-material social facts such as bureaucratic norm. तो bureaucrats मानक हम जो देखिबा material social fact रे आसीबे, किंतु bureaucratic norm को जदि हम देखिबा एटा non-material social fact रे आसीबो। Durkheim को writings को जदि हम पढिबा his most important focus is on non-material social facts. Morality, collective conscience, collective representation, social current, जेते सब concept Durkheim describe करचंती, most of them are related to non-material social facts. Social fact को बुझिबा पई Durkheim दुईटी एक मेथड विषय रे डिस्क्राइब करथिले। निचर जो बुक्स Durkheim एक बुक लिखिथिले द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, जोटा कि 1895
रे डरखाइम लिखिथिले सेही बही रे सोशल फैक्ट विषय रे एवं सोशल फैक्ट रिलेटेड रूल्स विषय रे डरखाइम डिस्क्राइब करचंती तो ता मध्य रे चारिटी रूल आमे वर्तमान एठारे डिस्कस करिबा प्रथमतः डरखाइम कहिया को चाहउचंती रूल्स ऑफ ऑब्जर्विंग सोशल फैक्ट को केमती ऑब्जर्व करा जाय पारिबो सेठारे डरखाइम कहउचंती कि कंसीडर सोशल फैक्ट एज थिंग्स बा सोशल फैक्ट को आमे एक थिंग हिसाब रे नबा एवं सोशल फैक्ट को थिंग हिसाब रे ही आमे कंसीडर करिबा एठारे से कहउचंती किछि डरखाइम कंडीशंस रखिचंती प्रथमतः कि जोटा आमे डिस्क्राइब करले वर्तमान सोशल फैक्ट्स शुड ऑलवेज बी ट्रीटेड एज थिंग्स एठारे से थिंग कहिवार अर्थ होची आमे ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करिबा दरकार सोशल फैक्ट को पढिला बेले आमे सब्जेक्टिव फीलिंग्स रे उद्बुद्ध न होई निजर ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन करी सोशल फैक्ट को पढिबा दरकार द्वितीयतः से कहउचंती वॉलंटरी नेचर ऑफ सोशल फैक्ट शुड नेवर बी अज्यूम्ड बिफोर हैंड ता सोशल फैक्ट रो कंडीशंस कोन होबो नेचर कोन होबो आमे ताको मूलरू अज्यूम करिबा बा भाबी नबाटा ठीक नुहे सोशल फैक्ट एज इट इज अछि आमे ताको सेमती ही पढिबा दरकार फॉर एग्जांपल रिलीजन जदि हम रिलीजन को गोटे सोशल फैक्ट भाव में नौचे एवं एक प्री कनसेप्ट नोशन नहीं जाउचे कि रिलीजन धर्म माने भगवान को विषय रे किछि थिबो तथ्य बा सुपर नेचुरल सहित किछि अटैचमेंट थिबो किंतु जदि हम फील्ड को जाउचे किछि आमे एंशिएंट फॉर्म ऑफ रिलीजन देखिबा जेमति कि अरुंथा ट्राइब मानकर टोटेमिज्म सेठारे हम भगवान को कांसेप्ट हमें पाइबा देयर इज नो सुपर नेचुरल गॉड इन दैट कांसेप्ट गॉड कांसेप्ट सेठारे नाही सेठी जदि हम रिलीजन को देखिबा सेठी हमें टोटेमिज्म को देखिबा सेठी हमें सॉलिडारिटी को देखिबा तो हमें सेठी पई जति प्री कंडीशन नै कि सोशल फैक्ट को स्टडी करूचे देन हमें भूल कंक्लूजन रे पहुंचीबा सो इन डरखाइम्स लैंग्वेज the voluntary nature of social fact should not be assumed beforehand or there should not be any precondition to study social fact तापरे डरखाइम डिस्क्राइब करूचंती ऑब्जर्वेशन ऑफ सोशल फैक्ट should go beyond individual manifestation जेतले हमें सोशल फैक्ट को ऑब्जर्व करूचे हमें ताको इंडिविजुअल लेवल रे न करी कि हमें सब बेले सोशल फैक्ट को एक ग्रुप लेवल रे एक सोसाइटल लेवल रे देखिबा दरकार जेतबेले गोटे सोशल फैक्ट जनरली लोक मान को लाइफ को अफेक्ट करथबो बा सोसाइटी रे गोटे जनरल लेवल रिप्रेजेंट थिबो एवरेजली समस्त से सोशल फैक्ट को शेयर करथबे से फैक्ट को शेयर करथबे देन ओनली हम से फैक्ट को सोशल फैक्ट बोली कहि परिबा तापरे नेक्स्ट जदि इंडिविजुअल लेवल रे एटा होथबो ताले ताको केबे भी इंडिविजुअल फैक्ट हमें कहि परिबा किंतु केबे भी सोशल फैक्ट बोली कहि परिबा नाही तापरे नेक्स्ट डरखाइम कहउछन्ती ऑब्जर्वेशन शुड सीक external characteristics which can be objectively perceived by others so it means social fact किछि गोटे निजर characteristics किछि फीचर किछि लक्षण को एक्सटर्नली बा बाह्य भाव रे शो करूथबो जहा को कि इजीली जे कोनोसी लोक ऑब्जेक्टिवली स्टडी करि परिबो तापरे डरखाइम कहउचंती रूल्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट यह एक जरूरी नियम डरखाइम को मतरे सोसाइटी रे कोनोसी एक सोशल फैक्ट बा एक सोशल फेनोमेना बा एक घटना नॉर्मल न थाए कि पैथोलॉजिकल न थाए बा एबनॉर्मल न थाए यह सब बेले डिपेंड करे डिग्री ऊपर से एठारे दुईटी नियम दउचंती हम काहा को नॉर्मल कहबा काहा को पैथोलॉजिकल कहबा तारा डिस्टिंग्विश करबा डरखाइम को मतरे यह संभव न यह को डिस्टिंग्विश करिया पई डरखाइम दुईटी जिंस ऊपर फोकस करचंती गोटे होची जनरलिटी गोटे होची यूटिलिटी जतबेले समाज रे गोटे प्रैक्टिस जनरली हेउची हमें ताको नॉर्मल सोशल फैक्ट बोली कहबा किंतु जतबेले किछि लोक से जनरल फैक्ट को अपोज करूचंती एवं सेमानक संख्या मध्य गोटे लेवल बियॉन्ड जाउची गोटे लिमिट बियॉन्ड जाउची हमें ताको पैथोलॉजिकल कहि परिबा तापरे सेकंड रे यूटिलिटी एठारे अगेन डरखाइम एक फंक्शनल अप्रोच नै चंती आ डरखाइम को मतरे जे पर्यंत समाज रे जे कोनोसी एक
सोशल फैक्ट रो यूटिलिटी पॉजिटिवली अछि आमे ताको नॉर्मल सोशल फैक्ट बोली कहबा किंतु जतबेला तार यूटिलिटी गोटे लिमिट बियॉन्ड क्रॉस कला परे सोसाइटी को नेगेटिवली अफेक्ट करूची सेतबेला आमे ताको पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट बोली कहि परिबा। अत्यंत चालाक भावरे डरखाइम एठारे से डिग्री को केबे डिफाइन करि नांती कि केतिकी डिग्री बा केतिकी परसेंट लोक गोटे जिंस को फॉलो करले सेटा नॉर्मल रहिबो किबा पैथोलॉजिकल हबो। तो सेति भाई एटा डरखाइम समाज ऊपर छाडी छंती। तो समाज रे दुईटी नियम ऊपर फोकस करछंती गोटे होची जनरलिटी एवं अन्यटी होची यूटिलिटी। एठारे डरखाइम एको मेजर आइडिया देउछंती जोटा को आमे कहि परिबा गोटे एग्जांपल देइछंती क्राइम रो। तो क्राइम को डिस्क्राइब करिया पई डरखाइम नॉर्मल और पैथोलॉजिकल सोशल फैक्टर एग्जांपल रे आमे क्राइम को नै परिबा। क्राइम रो आमे जानि परिबा कि दुईटी किपरि अंगांगी भाबे परस्पर सहित जड़ित। डरखाइम को मतरे कि जेतबेला साधारण लोक गोटे क्राइम विषय रे सुने तो क्राइम को आमे पैथोलॉजिकल बोली नै जाऊ। क्राइम माने समाज रो एक पैथोलॉजिकल बा एक कुष्ठित प्रैक्टिस तो यह न होबा दरकार। किंतु डरखाइम निज थ्योरी रे एक्सप्लेन करिसंती कि क्राइम मध्य सोसाइटी पई किपरि उपयोगी होई थाए एवं क्राइम रो मध्य सोसाइटी रे विभिन्न प्रकार भूमिका होई थाए। प्रथमतः डरखाइम को मतरे crime is present not only in the majority of societies of one particular type but in all society of all type। तार अर्थ कि समस्त प्रकार समाज रे किछि ना किछि लेवल जाय क्राइम रो प्रेजेंट थाए। तो यह एक जनरलिटी मध्य रे आसुची। तो आमे एको सब बेले पैथोलॉजिकल बोली कहि परिबा जे पर्यंत क्राइम एक डिग्री मध्य रे होची। क्राइम हेबा पई हेबा जोगुरु सोसाइटी रे पुलिस जुडिशियरी एपरि बहुत विंग्स काम करूछंती जो निजर यूटिलिटी क्राइम रू पाउछंती एवं क्राइम जोगु लोक माने कॉन्शियस रहउछंती। तो सेति पई क्राइम गोटे लिमिट जाय सोसाइटी पई नॉर्मल। जेतबेले से लिमिट क्राइम क्रॉस करी जेतबेले से डिग्री एक्सीड करी जाय सेतबेले हम क्राइम को पैथोलॉजिकल बोली कहि परिबा। एथरे डरखाइम कहउछंती इफ देयर वर नॉट ओकेजनल डेविएंस ऑफ नॉर्म there would be no change in human behavior and equally important no opportunities through which a society can either reaffirm the existing norms or else reassess such behavior and modify norm itself। एठारे डरखाइम एक एग्जांपल देइछंती सॉक्रेटिस करो। तांको मतरे क्राइम जे पर्यंत किछि सोसाइटी रो नियम अछि जोगुडा कि ऑब्सोलेट बा पुराना हो गलानी तार सही नियम रे जदि हमें देखिबा देन सोसाइटी रे क्राइम हमें किछि गोटे मनुष्य केही गोटे इंडिविजुअल निजर भाव प्रकाश को भी हमें सोसाइटी रे तार वे ऑफ लाइफ सोसाइटी पई क्राइम हे पारे किंतु से इंडिविजुअल पई सेटा क्राइम न। उदाहरण जदि हमें देखिबा डरखाइम को उदाहरण को परे आसीबा आपण बुझिबा पई मु प्रथमे हम भारत रो स्वाधीनता संग्राम रो उदाहरण देउछि। जेतबेले स्वाधीनता संग्रामी माने ब्रिटिश सरकार को अपोज करथले तो ब्रिटिश सरकार को आखि आगे से माने क्रिमिनल थिले किंतु जेतबेले इंडिपेंडेंस प्राप्ति हे गला आपण भारत छाड़ आंदोलन रो एग्जांपल नियंतु 1942 मसिया आरंभ होला तो 1946 मसिया जाय लोक जेल रे रहिचंती भारत छाड़ आंदोलन रे पार्टिसिपेट करी कि ब्रिटिश सरकार को विरोध करी कि लोक माने जेल रे थिले राजद्रोह मामला रे जेल रे थिले किंतु 47 मसिया रे भारत रो स्वाधीनता सहित से माने एक क्रिमिनल रु एक स्वाधीनता संग्रामी समाज रो एक गणमान्य व्यक्ति रो मर्यादा हासिल करथिले। तो केवल समाज रो गोटे परिवर्तन फल रे तांकर क्राइम आ क्राइम न होई कि समाज पई ग्रेटेस्ट एक्ट ऑफ अल्ट्रुइज्म भाबरे विख्यात होइथिला एवं से मानको समाज रे पुरस्कृत करा जायथिला। तो एहा शो करूची कि समाज रो परिवर्तन दिगरे मध्य क्राइम रो भूमिका रहिची आ समाज जो सब जिंस को क्राइम बोली विवेचना करता है ता मध्यरु समस्त जिंस सब समय पई क्राइम न थाए। किछि पुराना समाज पई क्राइम होइथिले किछि क्राइम्स पुराना समाज रे क्राइम हिसाब रे देखा गले मध्य नूतन समाज रे ताकू सम्मान दिया जाए बा क्राइम हिसाब रे ट्रीट करा जाए नाही। आमे एठारे उदाहरण नबा सॉक्रेटिस करो। डरखाइम सॉक्रेटिस को ऊपर एठारे लिखिचंती तांको मतरे सत्य कहिबा जोगु सॉक्रेटिस को
विषपान करी मृत्युदंड दिया जाइथिला आ विषपान करिया पई बाध्य करा जाइथिला। तो सॉक्रेटिस जहा कहउथिले तांकर जहा थ्योरी थिला सही थ्योरी से समाज पई क्राइम थिला, किंतु सॉक्रेटिस को मृत्यु पर से समाज रे बहुत कम समय रे गभीर परिवर्तन आसिला ग्रीक समाज रे टू बी एग्जैक्ट। तो से परिवर्तन पर सॉक्रेटिस को थ्योरी को क्राइम हिसाब रे न नेकी सॉक्रेटिस को एक्ट को क्राइम हिसाब रे न नेकी सब बेले एक सम्मानर सहित एक नॉर्मल एक्टिविटी एवं एक समाज को परिवर्तन करबा पय एक दिग एक रिफॉर्मिस्ट हिसाब रे सॉक्रेटिस को सब बेले एक डिस्टिंग्विश फिलोसोफर हिसाब रे सॉक्रेटिस को ट्रीट करा गला। मात्र जो समय से बंची थिले तांको एक क्राइम करिथिबा पय समाज तांको एक क्रिमिनल भाव रे ट्रीट करथुला एवं तांको मृत्यु परे तांको द्वारा कहा जायथिबा शब्द को एक क्राइम भाव रे कंसीडर न करा जाय ट्रुथ बोली कंसीडर करा गला एवं समय सहित तांको एक क्रिमिनल भाव रे ट्रीट न करा जाय एक सर्वकालीन श्रेष्ठ दार्शनिक भाव रे ट्रीट करा गला। तो एटा शो करूची कि क्राइम नॉर्मल मध्ये होई पारे सेति पय इट इज वेरी इंपोर्टेंट टू हैव द रूल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट। तापर आसीबा नेक्स्ट रूल को रूल्स फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटीज। तो सोशल फैक्ट बेसिस रे सोसाइटी को क्लासिफाई करिवा पय डरखाइम चारि प्रकार रो क्लासिफिकेशन करिसंती। एठी डरखाइम को थ्योरी हर्बर्ट स्पेंसर को थ्योरी थारु अनुप्राणित डरखाइम को मतरे सोसाइटी प्रथमे सिंपल मोनोसेगमेंटल फेज रे रही थाए जहार उदाहरण से हर्ड देइछंती। हर्ड को एक माने लोक मानकर एक समूह क्लान करी हमें नहीं परिबा। तापरे जेतबेला सोसाइटी रे आगु को आहुरी चेंज आसे ट्रांसफॉर्मेशन आसे सोसाइटी आगु को बढ़े जनसंख्या सोसाइटी रे बढ़े मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस सोसाइटी विटनेस करे सेतबेले हमें नेक्स्ट स्टेज दे आसरे पहुंची थाउ जहा को सिंपल पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी बोली कहा जाए। सही सोसाइटी रो उदाहरण रे डरखाइम ट्राइब्स मानकर एग्जांपल देइछंती। सिंपल पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी रे जेतबेले परिवर्तन घटी थाए समाज आउ आगु को बढ़े समाज रो जनसंख्या आउरी अधिक बढ़ी थाए। तापर हमें सिंपल कंपाउंडेड पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी बोली पहुंची थाउ। सिंपल कंपाउंडेड पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी रे यूनियन ऑफ ट्राइब रो एग्जांपल डरखाइम देइछंती बा जो सोसाइटी रे किछि ट्राइब निजर ट्राइबल आइडेंटिटी को इंटैक्ट रखी की एकाठी रही थांती। जेतबेले सोसाइटी सही स्तर को अब सोसाइटी सामाजिक परिवर्तन रो सही स्तर रे उपनीत होई थाए ताकू हमें सिंपल कंपाउंडेड पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी बोली कहि थाउ। एवं ता परे शेष स्टेज रे सोसाइटी डबली कंपाउंडेड पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी बोली डरखाइम कहिसंती। डबली कंपाउंडेड पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी रो उदाहरण रे से सिटी स्टेट बा जेमती रोम स्पार्टा एथेंस थिला तार एग्जांपल दैछंती। तो सोसाइटी जेतबेले से स्टेज रे पहुंचे ताको हमें डबली कंपाउंडेड पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी बोली कहि थाउ। एवं डरखाइम करो क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी रे एटा सबटु कॉम्प्लेक्स सोसाइटी एवं एठारे हमें कहि परिबा कि ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी माने प्रतिष्ठा होई थाए आगु जाई। तो हमें जेतबेले डिवीजन ऑफ लेबर डिस्कशन करिबा सेतबेले एगुडा डिटेल रे ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी एवं मैकेनिकल सॉलिडारिटी पढिबा। तो या परे नेक्स्ट एंड लास्ट रूल फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट को एक्सप्लेन करिबा पय डरखाइम मोस्टली दि प्रकार रो रूल विषय रे फोकस करछन। गोटे होची काउजल रूल बा कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप ता ऊपर डरखाइम फोकस करछंती बा एही थारे जदि गोटे घटना घटुची काहे की घटुची जदि समाज रे रिलीजियन अछि काहे की अछि रिलीजियन रो एस्पेक्ट कोन पय रिलीजियन समाज को आसी छी जदि हमें सेटा डिस्क्राइब करूछे देन इट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ सोशल फैक्ट थ्रू काउजल फैक्टर्स एवं द्वितीय रे फंक्शनल फैक्टर्स। दरखाइम द्वितीयतः फोकस करिसंती कि सोशल फैक्ट को बुझिबा पय एक्सप्लेन करिबा पय हमें बहुत समय रे फंक्शनल फैक्टर बा प्रकारज्यगतर साहाय्य लेथौ। एक्सक्यूज मी। यहाँ मध्यरे मुख्यतः जेकोसी सोशिएटल एलिमेंट अछि
फेनोमेनन अछि ताहा समाज को किपरि भाबरे प्रभावित करूछि ताहा समाज रे कोन केउ फंक्शन टी पूरा करूछि आ केउ प्रकार को एड्रेस करूछि आमे ता ऊपर फोकस करिथौ तो एठारे आमे बुझिया पई एग्जांपल क्राइम रो नबा क्राइम इज अ सोशल फैक्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट एठारे डरखाइम डिस्क्राइब करूछंती कि क्राइम जेतबेले घटना घटी थाए किछि क्रिमिनल एक्टिविटी घटी थाए समाज रे एहा प्रथमे समाज रो कलेक्टिव कॉन्साइंस को अफेक्ट करि थाए आमे क्राइम रो कारण को जाई थाउ एवं क्राइम द्वारा घटी थिबा फंक्शन बा डिसफंक्शन को देखि थाउ एवं कहिया को बोले क्राइम इंज्योर्स कलेक्टिव कॉन्साइंस बा कलेक्टिव कॉन्साइंस को क्राइम क्षुण्ण करि थाए एवं सही ताको ठीक करिवा पई जदि समाज रे ऑर्गेनिक जदि समाज रे मेकानिकल सॉलिडारिटी थाए तेबे समाज क्राइम पई रिगोरस पनिशमेंट दे थाए जहा कोई डरखाइम रिप्रेसिव पेनल लॉ बोली कहिसंती एवं कलेक्टिव कॉन्साइंस रो इंज्योरटा एठी स्पेसिफाई होई थाए एवं जदि सोसाइटी रे ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी प्रैक्टिस हुए ताहले कलेक्टिव कॉन्साइंस को ठीक करिया पई से इंडिविजुअल को रिफॉर्म करा जाए तो रिफॉर्मेटिव पेनल लॉ बा रिफॉर्मेटिव लॉ ऊपर डरखाइम फोकस करिसंती तो ये दुई प्रकार पनिशमेंट दिया जाए एवं यहा फल रे क्राइम रो इम्पैक्ट जहां भी कलेक्टिव कॉन्साइंस ऊपर पड़ी थाए ताकू ठीक करा जाए सो दिस आर द लॉ नेक्स्ट क्लास रे हमें बाकी थ्योरी गुटा डिस्कस करिवा आज रो कार्यक्रम को एठारे समाप्त करा गला थैंक यू सी यू इन नेक्स्ट क्लास